Hello everyone. I hope you all are doing well, right? So today we have a very special person with us, Mr. Shubham Pandey, right? So currently he is working with PW Gulf as a growth manager, right? Other than that, he has earlier worked with an academy as business development manager and onboarding specialist. I believe these terms are already good enough to talk about his credibility, right? Let's begin with the podcast. We won't waste any more time, right? Sir, how has been your story? We would just like to hear it out. Growth, consistency, idea, reality. It all begins at one point. Here. Want to know how the industry works or how to build yourself? Learn from experienced people from the industry. Subscribe to know more. Thank you so much, Manish, for inviting me to this podcast. And it would be a great pleasure to be a part of this series, basically. So, we'll not waste much time, basically. My journey started from a very small town. It's known as Kirakat, which is in Jaunpur. So, you must have seen Mirzapur, right? So, there is a Shukla ka region. Jaunpur mein wahan se hu. I hail from Jaunpur district, basically. Moreover, I consider myself as a Jaunpur and Varanasi guy because I did my schooling from Varanasi. So from there, I passed out around 2011-13. I cleared my intermediate. उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था IT JEE वगैरह के लिए. Then just like you, Manish, I landed in Gautam University for integrated MTech course, but end up doing MBA. So I did my mechanical and MBA degree from there, and it was turning point in my life. So I was very confused. Like बहुत सारे students अभी ऐसे होंगे जो बहुत confused होंगे कि engineering के बाद क्या करना चाहिए, MBA कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए. Right. I decided to do MBA when I was in fourth year of my college days. I didn't want to choose MTech. I was not willing to prepare for another 2-3 years for GATE basically. So I chose MBA because I knew that I have potential of marketing, presentation, this sort of. So I chose MBA as a marketing and operations. Then my whole story changed. I got placed from college. I got placed offline also, and I had to choose between Pune and Bangalore. And Bangalore was my first priority because I have heard a lot about Bangalore that if you land up in Bangalore and you grow immensely. Right. But since गौतम यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत माशाल्लाह बहुत ऊपर है. बट MBA you should do from, let's say, अगर आप B स्कूल से हो, then it helps you a lot. Because वहाँ पे उस हिसाब का कल्चर होता है, उस हिसाब की प्रैक्टिसेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं. Internship I did in MBA. I did my internship from Times of India, which is Times Internet. Get Me a Shop was the company's name basically. That was a turning point in my life. Gautam University gave me so much. And when I started my job in Bangalore, Right. My whole thought process as a fresher has changed. When someone is a fresher, they think that they will get a lucrative package of, let's say, 15 LPA, 20 LPA, 30 LPA, but then they end up, earning 15,000 or 20,000 per month, and they, crib about it. बहुत ज़्यादा पेन होता है यार कि 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है. But then what happens is, आपको एक अलग होना चाहिए जब आप कोई जॉब ज्वाइन करो एज अ फ्रेशर. A company is paying you, 20,000. They are letting you learn also during the employment. Right. And they are making, they are shaping your future. So अगर किसी फ्रेशर ने वो प्रोसेस रख लिया कि ड्रीम स्टेज पे फ्रेशर को इतनी सैलरी मिल रही है, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं. एक, मैं बस जॉब करता हूँ. दूसरा, मैं जॉब करना चाहता हूँ इन राइट डायरेक्शन. मेरा पैशन क्या है? Right. Let's say you have a very beautiful YouTube channel. You know the core of digital marketing. जितना मैं आपके साथ इंटरेक्ट मैंने आज इस 6-7 महीनों में किया है. So this should be the ideal way to start something, to start your career. अगर आपको पता है कि you are good at boxing, you should not go for hill climbing. In both sort. आपको अपने स्किल्स को और बूस्ट करना होगा, उसके लिए चाहे आपको पैसे देने पड़ जाए. Right. बट यहाँ तो कंपनी दे रही है. देन मुझे ये था कि मुझे सेल्स करना अच्छा लगता है, मार्केटिंग करना अच्छा लगता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है.
But then I had to choose between, a luxury and basically करियर, बेसिकली पैसा जिसको Right. बोलते हैं हम. Hmm. मुझे बैंगलोर जाना था बट मैं पुणे गया Hmm. बिकॉज बैंगलोर वाज टू एक्सपेंसिव एंड आई हर्ड अबाउट पुणे. तो मैं पुणे पहुंचा. जिस दिन आई लैंडेड इन पुणे, यू विल नॉट बिलीव आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम बैंगलोर. सो मैं पहली बार फ्लाइट पे जो है पुणे में चढ़ा था. मुझे इट वाज अ ड्रीम. मैं ट्रेन पे भी बहुत कम चढ़ा था. 2013 तक मैं ट्रेन पे कभी नहीं गया, कभी नहीं बैठा. उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू गौतम यूनिवर्सिटी, तो हर उस पे छुट्टी पे चला जाता था. पहली बार फ्लाइट पे बैठा. इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली. बट आई वाज वेरी अलोन बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का प्लेसमेंट लग चुका था Right. ऑलरेडी इन कैंपस. और मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे 25,000 की नौकरी या 20,000 की नौकरी नहीं करनी है. आई बॉर्न फॉर समथिंग वेरी ग्रेट. Hmm. देन जैसे ही बैंगलोर से ऑफर आता है, जैसे ही मैं बैंगलोर की धरती पे पहला कदम रखता हूँ, मेरा गेम चेंज हो गया. मैं पर्सनालिटी से लेकर मेरा इंग्लिश इंप्रूवमेंट से लेकर, सिंस आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन, सो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज चलते हैं. तो आप समझ सकते हो कि लोगों की इंग्लिश कितनी पुअर होती होगी वहाँ पे, राइट? सो व्हेन आई लैंडेड इन बैंगलोर, इट वाज अ होल लॉट डिफरेंट कल्चर. एवरीवन वाज वन स्टेप अहेड और 10 स्टेप अहेड विद यू, फ्रॉम यू बेसिकली. वहां से मैं धीरे धीरे लर्न करना सीखा. आई मेट विद सो मेनी पीपल एंड देन 5 साल वहां पे गुजारे बैंगलोर में. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे भूलना पड़ा. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लर्न एंड अनलर्न. Right. देन आई लर्न मेनी थिंग्स, बट उससे ज्यादा मैंने अनलर्न किया कि मैं ये गलत कर रहा था शायद. Hmm. आई लर्न हाउ टू सेल. मतलब कोई भी सेल्समैन पैदा नहीं होता, Right. बट आपको स्टोरी बिल्डिंग आती है कि आपको स्टोरी कैसे सुनानी होती है. Right. वो अगर आप ब्रश अप कर लो तो यू विल बिकम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन. Right. आपको सेल में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट का सोल्यूशन बेचना है कि वो सॉल्व क्या कर रहा है. वो फिर ऐसा समन्वय बना, मतलब इट चेंज्ड माय होल लाइफ. सो बैंगलोर इज व्हाट आई मिस राइट नाउ बिकॉज एज यू आल्सो नो मनीष, आई एम इन दुबई. Right. So yes, a lot of effort from my end also, and शिद्दत रहे तो कायनात मिलाती है चीज़ों से. Definitely. मतलब ऐसा है कि आपको तो मैं मतलब आई हैव हर्ड योर स्टोरी सिंस द बिगिनिंग इटसेल्फ. मतलब हमारी काफी बात हुई है पहले. सो Exactly. मतलब आई नो योर हसल, what all you have been through, because I am in the same environment, in the same university, right? I understand what problems exist here and what good things exist here, right? Now, like the journey is already so impactful that starting from such a small town to reaching Dubai, right? Working with your dream companies, right? And actually building something of your own, kind of, right? Because you're settling something over there again, right? Exactly. So ये सारी चीजें, like this is the thrill what people are actually looking for, right? इसके अपने perks भी हैं, अपने demerits भी हैं, right? But the thing is कि जिसको kick चाहिए वो सारे काम करता है, right? लाइफ में. And like it will be a really amazing podcast. जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, I really want you guys to actually stick to the podcast. Take a notepad, right? Take a pen and start noting now, right? Because this is what you should do when you listen to a podcast. काफी कुछ जानने मिलने वाला है. And people who are actually looking forward to reach the foreign countries in terms of jobs, so उनके लिए भी काफी सारे insights होंगे, right? So like you have seen the whole process, right? You know how things are actually happening over there, right? Now like people who are actually trying to target jobs in foreign, right? So what are the most in demand skills and qualification that professionals should actually focus upon while they're looking for a job in Dubai specifically, right? Especially in the sectors of education and business development. Cool. So you want me to showcase the reality of MBA graduates or any sort of students? I want you to be very honest about whatever it is, right? Because let's deliver the reality, and that's what we are here for, right? Cool. So I'll start from the very beginning. Right. Let's say you are at a very nascent stage of your career. अगर आप 20-22 साल के लड़का या लड़की हो एंड आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट या पोस्ट ग्रेड कंप्लीट कर लिया है, टिल देन अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं करी है, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू इन
एनी ऑफ द लाइक गल्फ रीजन, मिडिल ईस्ट बोल लीजिए या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी, राइट देयर इज अ रीजन टू इट. रीजन क्या है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपसे 10 साल ज्यादा आगे हैं. Because of technology, because of the language that they learn, the tools that they learn, so वो काफी प्रॉब्लमैटिक होने वाला है. राइट रीजन बीइंग कि आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब आप अपने मदर कंट्री को, जब होम कंट्री को छोड़ते हो. देन यू गेट अ फ्लाइट, यू गेट अ वीजा, बहुत सारी चीजें होती हैं बैकएंड में. अपना परिवार छोड़ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, आपको यहाँ पे आके फूडिंग वगैरह सब देखना है. यू विल नॉट गेट एनफ टाइम टू enhance your skill. तो अगर आप अभी तक स्किल नहीं सीखे हो तो यू शुड डू सम कोर्सेज. कोर्सेज कैन बी बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन टोटली. लेट्स से अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में हो तो आपको सेल्स ऑटोमेशन तो आना ही चाहिए, आपको CRMs आने चाहिए, लीड स्क्वाड, पाइप ड्राइव, सेल्स फोर्स, आपको इन सब पे हैंडी होना पड़ेगा. उसके बिना अगर यहाँ पर आप आओगे तो आप यू विल बिकम अ मीडियोकर. राइट आप मीडियोकर से एवरेज से अबव एवरेज उठ सकते हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू लीड द मार्केट. राइट. तो अगर आप प्लान कर रहे हो, इफ यू आर यू आर इन योर ग्रेजुएशन or पोस्ट ग्रेजुएशन, you should learn new skills. Definitely you should advance your Excel skills. Basically Microsoft Excel, it's a very common tool across globe. धरती पे कोई भी ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जहाँ पे Excel यूज ना होता. फॉर श्योर. तो आपको एटलीस्ट VLOOKUP HLOOKUP लगाने तो आना ही चाहिए. राइट. या आपको सम करने तो आना ही चाहिए भाई, ताकि इंटरव्यू में पूछ दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे होता है. ठीक है. स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा ये है कि माइंडसेट होना चाहिए कि एक माइंडसेट के साथ कि मैं किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ. जैसे अगर आप गल्फ में आ रहे हो तो व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट इज योर गोल फॉर नेक्स्ट 5 or 10 years. राइट. अगर आपने वो गोल डिफाइन नहीं किया है देन यू विल गेट स्टक. उसका एक रीजन है. उसका रीजन ये है कि आप अपना घर परिवार छोड़ रहे हो, आप अपने दोस्त छोड़ रहे हो. यू विल कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, अ ब्रेन स्पेस ऑल्सो. बिकॉज अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो देर आर 75% Indians, 70 to 75% Indians in Gulf. Oh my God. And Gulf is not just UAE, not Dubai. It's Oman, it's Qatar, it's Kuwait, it's Bahrain, it's Saudi Arabia. Right? So these are known as Middle East. Yeah. Middle East में अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करो, अगर स्पेशली कोई बायजूस में है या फिर कोई अनअकैडमी में है, कोई टॉपर में रह चुका है, टॉपर जिसको एक्वायर किया था बायजूस ने, इन सब सेक्टर्स में रहा है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर दिस मार्केट. इट्स अ वेरी गुड मार्केट बिकॉज यहाँ पे केरला इज अ प्लेस इन इंडिया, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज. राइट. वहाँ का थर्ड जनरेशन इज इवॉल्विंग हियर. So you will not understand how big this market is becoming. Definitely. But the main problem is एक set goal के साथ candidate आता नहीं है. Right. उसको लगता है कि यार दुबई में मस्त जाएंगे और डाउनटाउन में गेड़ियां मारेंगे और that's it. दुबई में पैसा बहुत ज्यादा है. It's not about पैसा, it's about right spot. कहाँ पे आप पहुंचने वाले हो, आपका गोल क्या है. Right. अगर आपका वो गोल नहीं है तो आप यहाँ पे आओगे 2 महीना के विजिट वीजा पे. कंपनी यहाँ पे वर्क वीजा देती भी नहीं इतनी इजीली. मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में. मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल आप देखोगे माशाल्लाह बहुत अच्छा है. हाँ. हम राइट उसके बिहाफ पे भी नहीं मिला. मेरा 5 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ. यहाँ पे आया मैं 1 महीना एसोसिएट की तरह घिसा हूँ, तब जाके मेरे को वर्क वीजा मिला. रेजिडेंसी ऑल्सो. तो जब आप यहाँ पे विजिट वीजा पे आते हो तो आपके पास प्रेशर होता है. प्रेशर क्या होता है? पापा ने पैसा डाला है फ्लाइट में, पापा ने पैसा डाला है वीजा में, क्योंकि आप अभी कमा नहीं रहे अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में. तो मैंने तो चलो बचा रखा था, सेविंग्स कर रखी थी, तो मैं आई वाज एबल टू टेक दिस रिस्क. बट जब आप एज ए स्टूडेंट होते हो, बहुत फ्रेशर होते हो, तो आपके पास वो पैसे नहीं होते. तो आपका पहला प्रेशर होता है कि फैमिली ने मेरे को बहुत भरोसा करके भेजा है बाहर. अब जब आप यहाँ पे आ गए तो आप कैसे जॉब ढूंढोगे? बिकॉज हर दिन हर ऑफिस में हर एक पोजीशन के लिए 1000 लोग हैं. 1000 का इंटरव्यू चल रहा है एक ऑफिस में. हाउ विल यू क्रैक दैट? फिर वो आपका स्किल काम आता है जो आपने सीखा हुआ है पीछे. राइट. सो दिस इज द हार्श रियलिटी.
अगर आप सऊदीया का वीजा देख लीजिए, आप कतर ओमान का वीजा देख लीजिए, वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनका वीजा देख लीजिए. Getting a job is very tough, but अगर एक बार जॉब में लग गए तो surviving in that job is also now is the toughest part. Definitely. Right? So this is how you build. This is how you should target any country. Let's say you are going to Canada also. आपके पास उतना एक्सपेंस होना चाहिए. क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट 7 लाख रुपए होने चाहिए कि अगर आपका कुछ ऐसा होता है कि आप कंट्री छोड़ने वाले हो तो आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए होने चाहिए कि आप बाहर जा सको कंट्री से. नाउ इट्स हैपनिंग इन दुबई आल्सो. आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3000 AED दिरहम्स होने चाहिए एंटरिंग इन द कंट्री एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट, ताकि अगर बहुत ही खराब समय हो तो आप एटलीस्ट अपने घर वापस जा सको. हम आपको नहीं रख सकते, हम आपको लायबिलिटी एज अ नहीं देख सकते. तो यू हैव टू प्लान वेरी स्मार्टली. सो दिस इज माय टेक व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दीस years and इतना जो देखा है अभी तक दुबई में, उसके बिहाफ में मैं बोल सकता हूँ. Right. And I understand that these situations are very challenging, right? मतलब ऐसा है कि सभी के लिए मतलब जैसे ग्लोरीफाई करा जाता है चीजों को, उतना ग्लोरीफाइड है नहीं, right? हाँ, ट्रू. मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ. मैं गौतम यूनिवर्सिटी में अभी जहाँ पे तुम प्रीमाइसेस में बैठे हो, वहां पे सिंगल रूम है, right? 300 बच्चों का एक सिंगल हॉस्टल है, एक सिंगल ईयर के लिए, right? एंड सिंस यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट, और कितना शांत है माहौल, राइट? मुझे ऑफिस में रुकना पड़ा आज ताकि मैं ये पॉडकास्ट बना सकूं, राइट? बिकॉज मैं 10 साल से सिंगल रूम में रह रहा था. मैं अपने स्कूल में भी जब मैंने हॉस्टल लिया था तो सिंगल रूम में था. GBU में भी मैं 5 साल सिंगल रूम में रहा. बैंगलोर पहुंचते ही मैंने सिंगल रूम ले लिया कि यार चलो बढ़िया कमा रहा हूँ तो बढ़िया सिंगल रूम में रहूंगा. मेरा शौक म्यूजिक का भी है तो मैं कंटेंट क्रिएट वगैरह करता रहता हूँ, राइट? तो किया. यहाँ पे आकर गेम पूरा उल्टा है. मैं अभी बेड स्पेस में PG में 5 लोग के साथ रह रहा हूँ, एक रूम में. एंड जितना बड़ा GBU का रूम है उतना उससे छोटा रूम है. लिटरली भाई 5 लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, एक वॉशरूम शेयर करता हूँ. सो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट टू बिल्ड योर करियर. तो हालांकि मतलब आने वाले टाइम में आई रेंट अपार्टमेंट, बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करूंगा, बट इनिशियल के डेज में यू विल हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने कभी सोची नहीं होगी, राइट? दिस इज हाउ यू ग्रो, राइट? ये सब रियलिटी है, राइट? मतलब this point is shocking that like 5 people are living in this small room, honestly. मतलब this is not appropriate for 2 people even, right? Exactly. 5 people are... जब मैंने इंडिया से कॉल किया था, right? अब इस ब्रोकर को, रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर को, मैंने बोला कि मैं अकोमोडेशन देख रहा हूँ, आई विल रीच ऑन दिस डेट. तो उसने बोला कि ठीक है, बुक हो जाएगा. मैंने उसको कॉल किया कितने लोग रहते हैं, उसने बोला भाई अभी 2 हैं. तो आई वाज हैविंग दैट इंप्रेशन कि 2 लोग की PG है. फिर उसने बोला कि अभी तीसरा बंदा भी आ रहा है. मैंने बोला चलो 3 लोग की PG है. जिस दिन मैं पहुंचा हूँ उस दिन उसने 2 लोग और रिक्रूट कर दिए, बंक बेड डाल दिया. नाउ यू आर अवे फ्रॉम योर कंट्री. आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते बिकॉज आप लीगली यहाँ पे हॉस्टल में नहीं रुक सकते, राइट? अगर आप विजिट वीजा पे हो तो यू कांट स्टे इन अ हॉस्टल. आपको एक होटल का बुकिंग दिखाना पड़ता है. तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद पता चलते हैं. यहाँ से तो किसी ने बुर्ज खलीफा का फोटो डाल दिया और हबीबी वेलकम टू दुबई बोल दिया. ऐसा नहीं होता भाई, रियलिटी इज वेट. Oh my god, like this is totally off the mark, honestly. मतलब I didn't even think कि ऐसा कुछ मतलब reality होगा, honestly. मतलब this is shocking for the people also who are actually listening to the podcast. मतलब reality is very different from what is being shown to the people globally, right? मतलब दुबई को इतना glorify कर रखा है and the reality is so shocking. It's actually good for tourists. Right. मतलब अगर वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 2, सेकंड टूरिज्म पे है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर टूरिज्म. बट दिस इज ओनली प्लेस फॉर टूरिज्म. अगर आप आए यहाँ पे, आपने पैसा खर्च किया है 1.5 लाख रुपए, बढ़िया होटल बुक किया है, तो यू विल फील वेरी प्रिविलेज्ड, यू विल फील वेरी स्पेशल. बट व्हेन यू आर कमिंग हियर इन टर्म्स के मुझे अर्न करना है, मुझे ग्रो करना है, देन रियलिटी दूसरा होता है. Right. So, like, you have faced multiple challenges, right? And you also mentioned a few of them.
So what is the biggest challenge that you faced till this point? मतलब अगर एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, राइट, मतलब once you came to the country again, right, to work over there, right? So like what was the biggest challenge for you while you were just trying to settle over there, right? एक तो ये accommodation वगैरह का पॉइंट हटा करके एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से कि you were about to join the company, तो उस पॉइंट पे क्या क्या problems you have faced and how did you overcome them? ठीक है, I explain in this way. Let's say there is a fresher. उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसी एक्सपेक्टेशन होता है कि गधा मजदूरी करो, राइट, सीखो और जो काम दिया है वो असाइन कर लो. बट जब आप एक एक्सपीरियंस लेकर आते हो उस टाइम पे आपके साथ अलग ट्रीट किया जाता है. ट्रीट इन द सेंस दे बिलीव कि यू विल डू इट, एंड वो जब बिलीव करते हैं देन दैट क्रेडिबिलिटी शुड बी इंटैक्टेड. लाइक एक इंटैक्ट होना चाहिए क्रेडिबिलिटी का. मैं अगर आज ऑफिस में बैठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना है एंड उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है, राइट. तो मेरी फैमिली नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मतलब मेरी फैमिली नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मैं बेड स्पेस में जाऊंगा. तो एक मन में ये भी होता है कि यार मल्टीपल रोल्स देख लेते हैं, राइट. कंपनी में मैं किन किन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो मुझे देखना है. तो प्रेशर, यस, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत स्किल डेवलप करना है, बट अगर आपका एक्सपीरियंस भी है तो आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ का लॉ समझना है, आपको यहाँ की टेक्नोलॉजी समझनी है और उसके हिसाब से आपको काम करना है. जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो यहाँ पे यूज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ जियो टैगिंग. यहाँ पे वो एप्स बैन है, राइट. तो आपको नए टूल सीखने पड़ते हैं. तो वो सारी चीजें एक साथ आपको मतलब फिर अपना समय लगाना पड़ता है. तो क्रेडिबिलिटी वाली बात है कि अगर आपको कोई काम दिया गया तो उसको पूरा करना होगा आपको, समझ रहा हूँ, चाहे आपको ब्लड लगाना पड़े या स्वेट लगाना पड़े. सो दैट वाज द चैलेंज फॉर मी कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना एज एन एम्प्लॉय एंड बहुत सारी चीजें बैकएंड में चलते हुए. दैट वाज अ मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. Right, and you mentioned that you mentioned in the previous answer that visit visa मिलता है, right, initially when you come to Dubai, right, or Gulf, any country. So वहाँ पे once because ऐसा रूल भी है कि if you want to work with any company तो आपको वहाँ पे visit visa से काम नहीं होता. You need a proper documentation for that, right? तो how to actually get that thing done वहाँ पे आने के बाद, because you must have faced multiple issues in that as well, right? I'll tell you two scenarios. Right. One scenario जिसमें वीजा मिल जाता है अगर आप इंडिया में हो तब. जैसे मेरे फ्रेंड है बेसिकली, वो इंडिया में थे, वो अच्छी कंपनी में थे, जोमेटो में थे, स्विगी में थे बेसिकली. यहाँ पे कंपनी नून, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ असेसमेंट थे वो दिए और बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट एंड बेस्ड ऑन हिज प्रोफाइल उनको वर्क वीजा पहले मिल गया, उनको टिकट मिल गया, वो यहाँ पे लैंड हुए तो उनके पास वर्क वीजा था. नाउ ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है. आपका जो स्पॉन्सर होता है, जो आपको वीजा देने वाला होता है, वो पहले तो टेस्ट करता है कि आर यू कैपेबल और नॉट, राइट. तो बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी, उनके पास वेल एस्टैब्लिश सोर्सेज होते हैं जहां से वो आपको टैग कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा काम का है, इसको इतना नॉलेज है और इसको वीजा दे सकते हैं. बट ये इसका पोर्शन बहुत कम होगा, मैं परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो विजिट वीजा पे आते हैं. अच्छा. विजिट वीजा पे आते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, जॉब सर्च करते हैं. 2 महीने का विजिट वीजा बनता है मैक्सिमम, 3 महीने का भी बनता है, बट 2 महीना लोग मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. फिर जॉब ढूंढ कर जॉब ज्वाइन करते हैं, अपना वर्थ प्रूव करते हैं, तब उनको जाके वीजा मिलता है. तो इट्स वेरी टफ. मतलब मैं दोनों सिनेरियोज में बताता हूँ कि वहां से बैठे बैठे जॉब लेना इज वेरी टफ एंड यहाँ पे आके जॉब लेना इज मोर टफर देन द टफ. सो राइट. दिस इज हाउ इट हैपेंस. I got a brief overview, and I believe the people who are watching this also they understood that what is the reality, right, and what scenario exists over there. If you are actually going to some company which is based in the Gulf countries, then this will be one of the biggest challenges that you will face, right? Because you need to prove your credibility first of all. Then only the company will give you the work visa, right? And not the company, but then only you will get the work visa, right, from the government itself.
आप अपना वर्क वीजा भी खरीद सकते हो, नॉट वर्क वीजा, अपना प्राइवेट वीजा भी खरीद सकते हो, बट दैट कम्स अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख का वीजा आता है वो। अच्छा, वो जिनके पास पैसा है दे इन्वेस्ट इन दैट, यहाँ पे आते हैं 5-6 महीना साल भर जॉब सर्च करते हैं, बट दैट कम्स विद अ प्राइस, राइट? सो देयर आर मल्टीपल वेज टू एंटर, बट understood. आइडियल सिचुएशन में पीपल अप्लाई थ्रू रेफरेंसेस, हाँ. गेट अ जॉब हियर, गेट अ वीजा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay, yeah, understood. So ये तो हो गया with referrals. That with the referrals, people are getting a job in the Gulf countries, right? Now, what about the job search platforms where students could actually find remote opportunities from the companies that are based in Dubai itself or any other like any other Gulf country, right? So how could students actually get remote opportunities, either internships or jobs, right, based in Dubai or any other country? Yeah. It's a very good question actually. अगर कोई पहले से रिसर्च करके आया तो इट बिकम्स वेरी इजी, इवन दो वहां से भी जॉब ले सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट? अगर राइट सेट ऑफ स्किल्स है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड naukri.com, एवरीवन नोज, राइट? तो यहाँ पे गल्फ में नौकरी गल्फ करके एक पोर्टल है, वहां से यू कैन इजीली अप्लाई एन नंबर ऑफ जॉब्स। ओके, आप प्रीमियम वगैरह भी ले सकते हैं उनका एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, एज एन एप्लीकेंट। वो हो गया, नौकरी इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। दूसरा है इंडीड भी इंडिया में काफी चलता है, तो इंडीड से भी कर सकते हैं। द बेस्ट सोर्स इज लिंक्डइन, राइट? अपने राइट सेट ऑफ पीपल, जो राइट सेट ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज भेजें, चैट जीपीटी से बनाया हुआ नहीं, पर्सनल लिखा हुआ तो यू विल गेट अ गुड रेफरेंस फ्रॉम देयर। मे बी अपने कोई जो जैसे यू गॉट टू नो कि मैं दुबई में हूँ, रीजन बीइंग के आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट किए, हम दोनों ने इंटरेक्ट किया, नाउ वी नो ईच अदर, राइट? दिस इज हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क। तो अगर इफ यू आर वेरी गुड एट नेटवर्किंग ऑल्सो, you'll get a good job here for sure. Then यहाँ के जो लोकल वेबसाइट्स हैं उसमें से बेयूथ इज वन ऑफ देम, एंड अगर आप नौकरी गल्फ जॉब्स सर्च करोगे तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ पोर्टल्स व्हिच इज ओपन, तो वहाँ पे आप जाके आप आराम से जो है आप अप्लाई कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट मच रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली कहीं पे भी बल्क एप्लीकेशन करने लग जाओगे तो इट विल नॉट सूट योर प्रोफाइल, इट विल नॉट गिव यू दैट गुड रिस्पॉन्स। तो अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, कैसे कर सकते हो? इफ यू वांट टू ग्रो इन सेल्स, मेक अ सेल्स रेज्यूमे। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का भी स्किल है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का भी एक रेज्यूमे बना लो। तो हैव सम 5-6 रेज्यूमेज रेडी। ऑपरेशन में जाना है, सेल्स में जाना है, सेल्स मैनेजमेंट में जाना है, या फिर प्री सेल्स में जाना है, या डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। डिजिटल मार्केटिंग में भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, कीवर्ड, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो, उस बिहाफ पे रेज्यूमे प्रिपेयर करो। जहां पे जो वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग आप रेज्यूमे डालो। अंडरस्टूड। दैट विल पास योर ATS का जो सिस्टम होता है, सारी कंपनीज यूज करती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। वहां पे आप वो बाईपास कर जाओगे एंड देन यू विल गेट अ कॉल। अदरवाइज ब्लाइंडली कहीं पे भी अप्लाई करते रह जाओगे एंड रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर इट विल डिमोटिवेट यू। Right. So that's what my Understood. So this is a fair enough takeaway for the students as well, right? This is how you should proceed with the whole process, right? Now, like you earlier were working as onboarding specialist at an academy, right? Now, because you have already interacted with famous people and people who are actually renowned while working with an academy, right? So how did that experience help you out while working at the job at Physics Wala Gulf? It helped a lot. So basically, when I was in an academy, I was pitching key educators of YouTube. Let's say if you have heard about mathematically inclined Neha Agarwal ma'am, she is a very famous educator for mathematics. Right. She was working with Vedantu also. And Gavesh Bharadwaj sir, physics. I pitched, post physics wala educators also. So जितना भी top line है, I know them. It helped me in 2 ways. एक तो मेरे पास इंडस्ट्री इंसाइट्स मिलते थे मुझे कि व्हाट इज एडटेक, वो कैसे सोच रहे हैं, कोई यूट्यूबर कैसे सोच रहा है, कोई टीचर कैसे सोच रहा है, एक एकेडमिशियन कैसे सोच रहा है। दूसरा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर गया। अगर मैं बताऊं कि जब मैं फर्स्ट मंथ ऑफ माय फर्स्ट जॉब था,
I was a kid. Basically, Manish, hats off to you. You like आप अभी जॉब स्टार्ट भी नहीं किया अपने फुल फोर्स में, राइट? बट you are able to do these much podcast. आपके पास YouTube, by the way, silver button, right? तो आपने इतना कुछ कर लिया है कि it gives you that confidence. मैंने अभी कुछ किया ही नहीं था, तो वो फर्स्ट जॉब जो थी वो, फिर मेरी जो सेकंड जॉब थी वो अकेडमी थी. वहां पे जो मेरा ट्रांजिशन हुआ मेरे कॉन्फिडेंस में, इट वाज बिकॉज कि मैं ऐसे लोगों से बात करता था. तो आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. एक क्लास होता है, उस क्लास में एक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. उसके लेवल के हिसाब से और आंसर केवल टीचर को पता होता है. जो भी टेस्ट आता है वो सबसे लो आईक्यू वालों को अनाउंस कर देता है कि दे आर द बेस्ट, दे हैव हायर आईक्यू. ठीक है, पूरा एक साल उन लोग को पढ़ाते हैं और दे डोंट अप्रिशिएट जो सबसे हाई आईक्यू वाला बंदा होता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते. जब सेशन एंड होता है तो ये पता चलता है कि जो लो आईक्यू वाले थे वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार आई हैव दैट आईक्यू, राइट. तो सिंस वी आर नॉट फ्रॉम बी स्कूल्स, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आईएएम या ऐसे स्कूल से नहीं हूँ, एक्सएलआरआई से नहीं हूँ, बट यस आई मेट विद फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. मैं फाउंडर्स के साथ काम किया, मैंने रोमन सैनी सर के साथ काम किया है, और उनके जितने भी वीपीज या वहाँ पे जो भी एडीज होते थे उनके साथ बैठकर मैंने डील क्रैक करी है. उस बिहाफ पे इट हेल्प मी अ लॉट गेनिंग एक्सपीरियंस. एंड वहाँ से जो मेरे कनेक्शंस बने हैं जो आज डिफरेंट एटेक्स में है, राइट, दे नो कि हाँ मैंने क्या अचीव किया हुआ लाइफ में या फिर मैंने क्या चीजें क्रैक करी है. राइट. तो उस बिहाफ पे मेरा जो है क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गया. राइट. सो दिस हेल्प मी अ लॉट इन दोस टर्म्स. एंड कॉन्फिडेंस, बात करने का कॉन्फिडेंस, लोगों से मिलने का कॉन्फिडेंस, लोगों कैसे अप्रोच करना है, एक राइट ईमेल कैसे लिखना होता है, एक राइट मैसेज कैसे लिखना होता है, फॉलो अप कैसे करना होता है, इट एनहांस अ लॉट. So that's why I'm sitting. I totally agree to you, right, on this thing, because whatever pointers you mentioned and the example that you quoted, I believe it made everything very clear from the start itself. Once you started quoting the example, right? It totally depends on the environment you are in and the efforts that you are putting into something that you are targeting, right? The goal that you have set for yourself, right? And actually, the emphasis that networking has on anyone's personality, that is immense, right? मतलब उसका कोई limit नहीं है. Once you start connecting, once people start recognizing you for the talent, for the skills that you bring to the table, right? You'll start getting that confidence from scratch, right? जिस दिन लोगों को पता लग जाएगा, right? I think that's how it is. That's how it happens, right? मतलब most of the students are not even willing to take that मतलब risk, right? मतलब काफी बच्चे वहीं पे अटक के रह जाते हैं कि मैं इसको आउटरीच करूं या नहीं करूं. मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ज्यादा मना ही तो कर देगा इंसान बात करने से, या फिर रिप्लाई नहीं करेगा, राइट? एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है, दैट्स हाउ सेल्स वर्क्स, राइट? मतलब हर कोई आपको रिप्लाई थोड़ी करता है. मतलब आप कंपनी के लिए भी काम करके तब भी यही होगा, आप 100 कॉल करोगे उसमें से मुश्किल से 20 कनेक्ट होंगी, बट दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स हाउ यू शुड डू इट, राइट? मतलब व्हाई टू स्टॉप? एंड जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स. एक दिन नहीं मिलेगा, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल बी इन अ पोजीशन जहां पे कि यू विल बी सीइंग योर एफर्ट्स फ्लरिशिंग, राइट? एंड इट विल हैपन, राइट? सो एक और एग्जांपल हाँ, जो मुझे किसी ने दिया था, इट हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट, इट वाज अ म्यूचुअल टर्मिनेशन फ्रॉम माय फर्स्ट कंपनी, टू बी वेरी फ्रैंक. आज मैं ओपन मीडिया में बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इतना सीखा हूँ. It was not working for me. I became very good in sales, but it was not working for me. तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और एवेन्यू देखने चाहिए, और सेम मैंने जाके डिस्कस किया मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर से. उन्होंने बोला कि ठीक है शुभ, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करो एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. देन आई लैंडेड इन एन अकेडमी. वो जो 1 महीने का फेज था, इट वाज वेरी डाउटफुल फॉर मी कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं नहीं बना हूँ इसके लिए शायद. देन मैं एक प्रोफेसर से मिला जो अलायंस यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वहाँ के प्रोफेसर थे. मैं भी नाम तो उनका नहीं याद है मुझे, बट उन्होंने मुझे बात बोली, 2 बातें बोली कि शुभम एक बात ये बताओ कि तुम जब जूता खरीदते हो तो तुम्हें काटता है? मैंने बोला हाँ सर, लेदर शूज जो है वो शू बाइट होती है. तो बोले लेकिन आफ्टर सम टाइम यू गेट हैबिचुएटेड टू इट. तो दिस यू विल हैव टू डिफाइन कि तुम्हारा साइज क्या होना चाहिए जूते का. अगर 8 नंबर का तुम्हारा साइज है जूते का और तुम 10 नंबर का पहनोगे तो फिट नहीं होगा, 7 नंबर का पहनोगे तो फिट नहीं होगा, बट 8 नंबर वाला जूता तुम्हें
परफेक्टली फिट होगा. यू विल हैव टू फाइंड दैट एग्जैक्ट साइज, शू साइज फॉर योर टोज, राइट. नाउ उन्होंने दूसरा एग्जांपल उस दिन और दिया. शेर को कभी किसी ने बोला है, शेर कभी बोलता है कि मैं शेर हूँ, आई एम अ लायन, आई एम अ किंग ऑफ जंगल, जबकि सबसे बड़ा तो हाथी होता है, राइट. तो साइज के हिसाब से हाथी होना चाहिए, बट शेर कभी ये नहीं बोलता कि मैं सबसे राजा हूं मैं जंगल का. शेर की कैपेबिलिटी होती है वो सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. तो कॉर्पोरेट इज जंगल, तो वहां पे जंगल राज चलता है. तो आपका अपना खुद का सगा भाई भी आपको कुछ अगर निकल जाएगा अगर उसके अपने पे आ गई. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Enough to motivate amazing example honestly. मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है right now. मतलब I heard to something that actually made a difference right now. मतलब exactly this made difference in my life, so मैं बता सकता हूँ. Right, and this thing is so I don't have the right word to describe it honestly. मतलब after hearing to this particular statement that you mentioned, दोनों examples यार, मतलब honestly sir, like I'm so happy that we are recording this podcast, right? Because this thing is on camera and this thing will actually help thousands and thousands of people directly once they will listen to this example. मतलब इतना impactful example है, right? So let's just move on to the next question. Me a lot during that phase. I was in a very huge depression कि what should I do? मैं घर से आ गया हूँ, यहाँ पे 7वां महीना चल रहा है मेरा कि मैं घर से दूर हूँ और बैंगलोर में हूँ, बहुत कॉस्टली जगह है, मैं कैसे नेक्स्ट मंथ का रेंट पे करूंगा. तब तक आपके लाइफ में बाबा जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि यू हैव कैपेबिलिटी, यू राइट सेट ऑफ जॉब फॉर यू. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एंड मुझे मिल जाता है. कोविड आ जाता है, कोविड में मैं 2 महीने और लगाता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बेरोजगार बैठा हूँ, होल लॉट. तो एक इंसान अपने लाइफ में किन किन फेजेस से गुजरता है वो किसी को नहीं पता होता डेफिनेटली. बट हाँ, उसको ये सामने वाले को ये लगता है कि यार ये बहुत सही जगह पे है, बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है. सो बट उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता होता किसी को. Right. There are thousands of failures behind one success, right? Behind one success story. And this is why we are recording this podcast. This is why we have this series, because industry के बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं जो कि आपको reality बताते हैं. Right? If you want to actually gain the real insights, then just start listening to good people. Right? Good people who are actually delivering something very honest and they're building trust. Right? Now, moving on to the next component, right? Because you have already been through a lot of like interviews as well as I have been listening to your experience, right? So you have already catered a lot, right? So ऐसा है कि इस time पे negotiation is something that actually plays a very vital role, right? Negotiation is something जो कि ऐसी skill है जो कि हर किसी को सीखनी ही पड़ती है, right? सिर्फ job perspective से नहीं, life में भी. राइट. सो व्हाट हमारे रियल लाइफ में ऐसे नेगोशिएशंस होते हैं जो आपको दिखते नहीं है. राइट. वो भी एक एग्जांपल देना हो तो मैं 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ कि कब आप कहाँ पे नेगोशिएट हो जाते हो. बिल्कुल. अभी बात करते हैं इस बारे में. राइट. सो हाउ कैन एक्चुअली फ्रेशर्स any tips for the freshers specifically, that how could they actually gain that particular skill and how could it actually help them in the future upcomings? So मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि इट इज रिलेटेड टू देयर पर्सनल नेगोशिएशन फॉर सैलरीज और सेल्स नेगोशिएशंस. पर्सनल नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं और लाइफ के बारे में बात करते हैं, दोनों बातें. ठीक है. सेल्स का ट्रेनिंग अलग है, वहाँ पे नेगोशिएशन कैसे करते हैं वो अलग है. राइट. पर्सनल नेगोशिएशन टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, दैट्स इट. नो इफ एंड बट. अगर आपके पास इतना स्किल है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जो कंपनी मेरे को इस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, आपको राइट स्किल सेट है, यू नेगोशिएट. अदरवाइज वहां पे फिर वो नेगोशिएट करता है सामने वाला ऑन योर टेबल. मैं अगर आपको अभी बोलूं कि 6 साल पहले जब मैं 2019 में पास आउट कर रहा था, 5 साल पहले, उस टाइम पे मैं नेगोशिएट कर सकता था तो मैं नहीं कर सकता था बिकॉज मैं उतना स्किलफुल नहीं था. राइट नाउ आई कैन नेगोशिएट बेस्ड ऑन माय स्किल्स. राइट. तो यू शुड नो कि जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, अगर आप उसमें फाइनल राउंड तक जाते हो तो यू विल हैव टू नेगोशिएट बेटर. राइट. मैं सेम जॉब कर रहा था जब मैं एक्स कंपनी में था 5 LPA पे, और उस सेम प्रोफाइल पे मेरा फ्रेंड 25 LPA पे प्लेस हुआ. सेम प्रोफाइल, सेम जॉब रोल, एवरीथिंग, बिकॉज ही नेगोशिएटेड बेटर.
वो अलग बात है कि बाद में ले ऑफ हो गया था कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और मुझे हाइक मिला था. बट यस, negotiate better when you are in a corporate field because पैसा किसी के पास कम नहीं है. राइट. आप दो केस होगा, सिंस मैं यहाँ पे एचआर के भी कुछ रोल्स देख रहा हूँ, दो केस होगा इस केस में. पहला, सामने वाला फोन करके बोल देगा यार देखो बहुत मांग रहे हो, सच में मेरे पास बजट इतना ही है. हाँ. अदरवाइज वो अप्रूवल लेकर आएगा राइट. कि सर वो कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बस ये कि उसको 2 लाख रुपए और ज्यादा चाहिए. इट हैपेंड टू मी लास्ट ईयर. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड जेट. ओके, सो मैं वहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रोल में आई वाज गोइंग टू लीड द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर देम. आई न्यू कि ये जो भी सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर खोज रहे हैं उनका डेटाबेस मेरे पास है. नहीं भी है तो मोरओवर मैं इतना है कि मैं 10 दिन में इनका डेटा लेकर आ सकता हूँ. आई हैव एजेंसीज जिनके साथ टाई अप होता है डिफरेंट कंपनीज का. राइट, वो उनको भी पता था. आई नेगोशिएटेड वेल विद देम. तो लास्ट में मेरे ऑफर रिजेक्ट करते करते तक भी उन्होंने 2 लाख रुपए बढ़ा दिए थे मेरे करंट सैलरी पे. सॉरी, जो उन्होंने सैलरी दिया था. हाँ. मैंने तब भी ज्वाइन किया बिकॉज पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था. मैं ज्वाइन करने वाला था बट बैकग्राउंड में ऐसी चीजें चल रही थी कि आई वाज नॉट एबल टू. बट यस, देन आई रियलाइज्ड कि दैट्स अ पावर ऑफ नेगोशिएशन दैट आई हैव लर्नड. राइट. इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, नथिंग एल्स. It came with experience, right? Because you polished yourself so much that एक पॉइंट पे यू न्यू कि ठीक है अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि अब मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि रोल मेरे पास जो एक्सपर्टीज है वो इस रोल से अलाइन होती है. एंड आई हैव द राइट स्किल सेट टू एक्चुअली नाउ टॉक अबाउट इट. अब मैं पिच करता हूँ कि हाँ मेरे पास ये है, अब आपको चाहिए, यू हैव द रिक्वायरमेंट एंड आई एम द राइट पर्सन. एग्जैक्टली. नेवर ओपन इन नेगोशिएशंस फ्रॉम योर प्लेट. राइट. अगर आपसे एचआर ने बोला कि शुभम व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, अगर आपने बोल दिया कि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, देन यू आर ब्लॉक्ड. राइट. 2 गेम होगा वहां से. एक, वो आपके प्रोफाइल को बोलेंगे यार बहुत कॉस्टली है, हटा दो. हाँ. दूसरा, उनको मिल जाएगा कि हाँ ये बहुत सस्ता बंदा मिल रहा है. तो कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन मत सेट करना. आपको सबसे पहला काम करना है कि व्हाट आर यू ऑफरिंग फॉर दिस जॉब, व्हाट आर यू ऑफरिंग फॉर दिस जॉब. अगर वो उन्होंने एक ब्रैकेट खोला, सामने वाले ने ब्रैकेट खोला है कि ये ब्रैकेट है, एंड इफ यू थिंक कि इस ब्रैकेट में मैं जा सकता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको ब्रैकेट बताना पड़ेगा. राइट. राइट. और ये लीगल भी नहीं है, इंडिया में तो लीगल नहीं है कि आपका सैलरी पूछना. तो वो हम वो एचआर पूछ लेते हैं और हम बता देते हैं वो अलग केस है, डर के मारे. बट अगर आपको ब्रैकेट जाना पड़ेगा, फिर उस ब्रैकेट के बिहाफ पे यू नेगोशिएट. ठीक है. कभी ये मत बोल देना कि, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जॉब लेस था 7 महीने बाद और कोविड लग गया. मैं अकेडमी में मैंने जॉब दिया. यू विल नॉट बिलीव, मुझे एक एक्स अमाउंट बोला एंड आई गॉट बर्स्टेड लाइक ओह माय गॉड, इतना पैसा मिल रहा है. बट वो 3 टाइम्स कम था, उस जॉब के 3 टाइम्स कम था. मतलब वो 15-20 लाख की जॉब हो सकती थी. मैंने वो ज्वाइन 15-5 पे किया था. मैंने छूटते ही बोल दिया हाँ मैं कर लूंगा. डेस्परेसी, नेगोशिएशन में कभी डेस्परेसी नहीं आनी चाहिए. राइट. या सो दिस इज माय टेक ऑन नेगोशिएशंस. डोंट बी डेस्परेट, बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी लॉयल. एंड जो भी आपको लगता है कि इस काम के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट होगा, इतना स्किल इन्वेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से पैसा मांगो. राइट. ऑल्सो मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं दैट व्हाट इज द एवरेज बीइंग ऑफर्ड उस स्पेसिफिक जॉब. एमिशन बॉक्स है और बहुत सारे ऐसे वो है वेबसाइट्स हैं. मैं तो नाम भी भूल गया. लिंक्डइन भी बताता है कि एवरेज सैलरी क्या होती है. Glassdoor is another one. People. Glassdoor, exactly. Yeah. मतलब most the renowned one is Glassdoor itself क्योंकि सब लोग experience करते हैं वहाँ करके. Right. So students and people who are about to enter into the industry, आप लोग को इस बारे में पता भी होगा already Glassdoor what it is. Right. अगर नहीं पता तो explore जरूर करना एक बार. Right. So like in the previous role you mentioned that you have done influencer marketing, right? And also lead generation and bringing the data of people, मतलब जिसका भी requirement है company में, right? So मतलब ये ऐसा है कि that thing actually gave you awareness about market, the market trend specifically, where is the market moving towards, right? So now based on that knowledge, that experience, right, the analysis that you have done about the industry, how do you see the market moving in upcoming 5 years, right? And जो भी बच्चे आज they are pursuing any management course, right, any management degree, so जब वो graduate होंगे आज से आने वाले 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद, right, तो उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन what could be predicted out of it, मतलब उस चीज के लिए अपस्किल कैसे करेंगे खुद को. True. So
इसका बहुत ही कामली आंसर दूंगा क्योंकि इसको रश नहीं करते. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक. राइट. इवन दो ये मेरे भी करियर के लिए, आपके करियर के लिए, सबके करियर के लिए कि आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है मार्केट में. राइट. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी. AI ऑफ कोर्स इट विल लीड द मार्केट फॉर श्योर. राइट. बट इसके अपने अपने एस्पेक्ट होंगे. जैसे बहुत सारे लोग बना ही चुके हैं इस पे कंटेंट. मैं सेम चीजें बोलूंगा तो बहुत ही मोनोटोनस लगेगा. मैं जैसे अपना लाइव एग्जांपल लेता हूँ. मैं नाउ कोई बंदा बाइक राइड कर रहा है या कार ड्राइव कर रहा है, सेम मॉडल, सेम थिंग, सेम पेट्रोल है उसमें, 5 लीटर उसमें, 5 लीटर उसमें, सेम रोड है, बट दोनों ऑप्टिमम नहीं पहुंच पाते. ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्पीड. लेट्स से मनीष चला रहा है कार और मैं चला रहा हूँ. सेम रोड है, वही नाइस रोड है बैंगलोर का, अगर बच्चे रिलेट कर पाए. वहां पे सेम पेट्रोल है, सेम कार है, एवरीथिंग इज सेम. हमने स्टार्ट किया स्पीड करना. आप ऑप्टिमम नहीं पहुंच पाए, मैं पहुंच गया. या हो सकता है कि आप ऑप्टिमम पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाया. सो इट इज लाइक हाउ यू यूज द गियर्स, राइट. एक सही टॉर्क और एक सही स्पीड पे जाकर आपने कैसे गियर शिफ्ट किया है, राइट, वो मैटर करता है. तो आने वाले समय में 5 साल बाद जो टूल्स अभी हैं उनको यूज करके और कितना अच्छे से सफिशिएंटली एफिशिएंटली यूज कर पाएगा बच्चा या स्टूडेंट या फिर जो भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेड में है या फिर करंट एक्सपीरियंस में, वो टूल एडाप्टेबिलिटी कैसे कर पाएगा, दैट विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द मार्केट. क्योंकि चैट जीपीटी है, क्लाउड है और बहुत सारे AI टूल्स हैं जिसका यूज करके आप घंटों भर की चीज 2 मिनट में कर सकते हो. जैसे इस पॉडकास्ट में आई वाज मेकिंग अ वेबिनार फॉर अपकमिंग इवेंट. वेबिनार इवेंट का मैं एक डिजाइन शूट कर रहा था. वो मैं नॉर्मली अगर मैं किसी डिजाइनर को देता या फिर मैं अपने डिजाइनर को देता तो इट वुड हैव टेकन 2-3 डेज. बट मैंने आधे घंटे में वो पूरा वेबिनार का कंटेंट और उसका क्रिएटिव डिजाइन करके अपने टीम को सबमिट कर दिया फॉर अप्रूवल्स. इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी फॉर द डिजाइन एंड पैसा भी बचा. राइट. तो अब आप AI का यूज करके आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाओगे तो यू विल बिकम अ वेरी गुड लीडर आल्सो एंड दैट्स वेयर योर क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स इन द कंपनी. और सिंस मनीष आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. जैसे आपने मुझे ग्रोथ का कुछ पीसेस बताए वो मैंने अप्लाई भी किया एंड थैंक यू सो मच. उससे काफी चीजें चेंज हुई. तो जैसे ईमेल ऑटोमेशन है, बहुत सारे लोगों को बोलोगे कि बल्क मेल भेजना है तो वो डर जाएंगे कि बल्क मेल कैसे भेजूं, बैठ के सबको 50 लोगों को एक साथ ईमेल भेजना स्टार्ट कर देंगे. कुछ स्मार्ट होंगे जो मोडो मेलचिम्प यूज कर लेंगे. राइट. कुछ अल्टरनेटिव होंगे जो शीट पे फॉर्मूले डाल के उनको मैसेज भेज देंगे. राइट. तो वो टूल्स आपको आने चाहिए, राइट, टू ऑटोमेट दोस थिंग्स. राइट. ऑटोमेशन विल बी द नेक्स्ट फूड इन मैनेजमेंट. राइट. और ऐसा है कि वो या गो अहेड. आप बोलो. नहीं प्लीज गो अहेड. सो मैंने वही बोला कि ऑटोमेशन आना चाहिए, दैट्स इट. राइट. सो इसमें है कि यू नो लाइक देयर आर मल्टीपल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स. अब जो मतलब अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है दैट देयर आर n नंबर ऑफ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स. कुछ तो फ्री भी हैं, राइट. जो माइनर टास्क होते हैं ना कि रिप्लाइंग टू द कमेंट्स, रिप्लाइंग टू द मैसेजेस, राइट, शेयरिंग लिंक्स with like the messages that you are receiving, sending custom messages, preparing a template already, right, like sharing bulk emails, automating your LinkedIn posting, automating Instagram posting, right, automating like there are n number of things that we can talk about because ऐसा है कि even a single platform is solving these issues and exactly मतलब बहुत सारे platforms हैं. I won't mention the names यहाँ पे because like it won't be right, but you can do your own research. Students should do your own research and like you will definitely figure out कि क्या क्या है because the industry has a lot to offer in terms of automation. और आने वाले टाइम में ना like this thing will be increasing. मतलब ऐसा हवा बनाया जा रहा है ना कि AI जॉब खा जाएगा. AI जॉब नहीं खाएगा, आप लोग आउटडेटेड हो जाओगे, राइट. The thing is कि exactly. जो रिपीटेड जो ऐसे ना जो कि बहुत ज्यादा मजदूरी वाले काम है, जो कि ऐसे रिपीटेड टास्क है जो कि आप मतलब जो कि मैनुअली करवा रहे हैं, वो सब चीजें तो जाने वाली है फॉर श्योर, राइट. बट द थिंग इज कि आपको वो करना क्यों है, राइट. जब वो ऑटोमेशन पे हो सकता है, डू इट ऑन ऑटोमेशन, राइट. जो थिंकिंग का काम है, जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग का काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, डू इट. दैट्स द जॉब दैट इज मेंट फॉर यू, राइट, नॉट कॉपिंग. एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कंप्यूटर के इंसेप्शन से पहले भी लोग कमा रहे थे
Right. कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी कमा रहे थे, Right. और आज जब कंप्यूटर बहुत अलग फॉर्म में चला गया, लैपटॉप से लेकर आप मतलब कि ऐसे कंप्यूटर्स, मतलब मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स भी आ गए। अब इसके नेक्स्ट जेन जो आएगा वो आई एम नॉट श्योर, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, तब भी लोग खाएंगे, क्योंकि भाई इंसान पैदा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं सर्वाइवल करना पड़ेगा। Definitely. एंड हियर कम्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड हैबिट। Right. मेरे बाबा को फोन चलाने नहीं आता है, Hmm. मेरे बाबा जो है, मेरे ग्रैंडफादर जो है, उनको कॉल लगाने नहीं आता है। Hmm. दैट डजंट मीन कि उनकी कोई लाइफ नहीं है, Definitely. बट इट इज ऑफ नो यूज फॉर हिम। Hmm. उनको नहीं देखना है भाई कि कैरी मिनाटी का नया वीडियो आया है। Hmm. इट्स ऑल न्यू जेंजी थिंग, राइट? Right. तो बेस्ड ऑन योर जनरेशन यू विल हैव टू अडॉप्ट दैट थिंग। Right. अब उस हिसाब से यू विल हैव टू ग्रो। Right. तो मेरे पापा को एक्सेल नहीं आता है, बट मेरे पापा भी आज काम कर रहे हैं। मेरे पापा आज अपना जो बेसिक बिजनेस वो कर रहे हैं, ऑन पेपर कर रहे हैं, Hmm. राइट? तो दिस इज हाउ यू ग्रो। मतलब अब मुझे जरूरत है, मुझे लैपटॉप पे बैठना है लेकर एक्सेल शीट, उसके बिना नहीं चलेगा मॉडर्न मार्केट, Hmm. राइट? उस हिसाब से यू हैव टू अडॉप्ट। तो वही होने वाला है आने वाले 5 साल बाद भी। Right. AI विल बिकम अ कोर्स फॉर कॉलेजेस। Right. अभी एक होता है ना कि जैसे अगर कोई मॉडर्न फिजिक्स आया हुआ है Hmm. तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी करिकुलम में, ताकि लोगों को पता चले कि यार इसके ऊपर भी कुछ रिसर्च हुआ है। हाँ, इट टेक्स right. टाइम, Hmm. इट कम्स। Hmm. जैसे परेटो चार्ट हमने पढ़ा होगा, देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20 रूल, Hmm. राइट? ऐसे प्रूवन थे। Hmm. ये उसके पहले भी लोगों को पता रहे होंगे, बट ये जब प्रूव हुआ तो ये थियरी आई, Right. अभी भी इम्प्लीमेंट हो रही है। Hmm. तो एआई की थियरी थी, 2022 तक थियरी थी, बट चैट जीपीटी ने इसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नाउ उस पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हो। Right. इफ यू टाइप हु इज शशि थरूर, ही विल गिव यू द 1000 लाइंस। Hmm. आप बोलोगे कि 5000 लाइन लिख दो शशि थरूर के बारे में, इट विल राइट, Right. बिकॉज उसने इम्प्लीमेंट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Hmm. तो दिस इज हाउ यू विल अडॉप्ट द जॉब, जाएंगी नहीं और इनहेंस हो जाएंगी, Enhance हो बिकम मोर Right. एग्जैक्टली। एंड दैट तो थिंकिंग बेस्ड जॉब्स एनहांस हो जाएंगे। मतलब ऐसा है ना कि रिपीटेड टास्क तो किसी को भी नहीं करना पसंद, राइट? मतलब नॉट इवन यू, नॉट इवन मी, किसी को नहीं करना, मेरे को नहीं करना ऑनेस्टली, राइट? एंड व्हाई शुड वो जॉब होंगी, राइट? वो जॉब ऑब्सोलीट होंगी, बट वो इनहेंस हो जाएंगी। राइट, क्योंकि एवरी टेक मॉडिफिकेशन ब्रिंग्स इन अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइम, राइट? मतलब अभी भी आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेयर, बट एआई पिछले साल आया है एंड जस्ट चेक आउट द नंबर ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स दैट हैज इंक्रीज्ड। I believe this is the best example that I can quote, right? एक बार बस सर्च करके देखो, like what is the number of millionaires that has increased in just 1 year, only a single year, right? And you'll be shocked. बीइंग एजुकेशन सेक्टर, आप देखो कि नेक्स्ट फोर ऑफ एडटेक इज एआई, Right. एआई सॉल्वर, एआई डाउट सॉल्वर बेसिकली। अभी तो अनअकैडमी, मेरी प्रीवियस कंपनी, उन्होंने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है एआई का, एआई टूल ही बना दिया पूरा कि आप एप्लीकेशन में क्वेश्चन पूछो, आपको एप्लीकेशन में आंसर आ जाएगा, राइट? सेम गोज विद फिजिक्स वाला, सेम गोज विद वेदांतु, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन एआई। अभी एलएन इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट, राइट? वो भी ऑफलाइन का, बट उनको ऑनलाइन में आना पड़ा, बिकॉज नेक्स्ट आने वाला जो सिस्टम होगा एजुकेशन फील्ड में 5 साल बाद इज एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, अच्छा, प्लस आप कैसे हाइब्रिड मॉडल क्रिएट करो, राइट? तो हाइब्रिड मॉडल, हर चीज का हाइब्रिड मॉडल होता है। मुझे नहीं लगता कि 2020 से पहले किसी को वर्क फ्रॉम होम पता भी होगा। कोविड से पहले किसी को वर्क फ्रॉम होम पता नहीं था, बहुत ही प्रीमियम कंपनी देती थी वर्क फ्रॉम होम, राइट? बट अब तो जॉब्स ही वर्क फ्रॉम होम है। तो दिस इज हाउ यू नो अडॉप्ट द जॉब रोल, Right. So I believe like these are all very fair enough insights that you have shared, right? And बच्चों को definitely they have gained a lot of value from this single answer as well, right? I believe you students are noting down these pointers, right? Because this is after watching this podcast, just try to do your own research. जो भी सीखा है ना, just try to implement it एक बार, मतलब ढूंढ करके तो देखना at least, because why wasting your time watching it अगर यूज ही नहीं करना उस चीज को तो, राइट? सिंगल बंदों के लिए भी एआई है, सिंगल लड़के अब एआई गर्लफ्रेंड अपॉइंट कर सकते हैं, राइट? बहुत बंदा बहुत अकेला फील कर रहा है, किसी से बात करनी है तो आप एआई से बात कर लो, लाइक जस्ट द प्रॉम्प्ट के बिहेव लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड, आई हैव दिस इशू, सजेस्ट मी समथिंग, इट विल बिहेव लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फॉर अस।
Like, don't explore this. True. Don't go in beyond. Right. Okay. So you have also been involved in both B2C and B2B sales, right? So you have implemented and known multiple strategies which work out in both the different like segments, right? So like, what is the basic difference between both the things, and any takeaways for the students while they choose their like career path, and any suggestions for them regarding this? B2C yes, B2B yes. These two are very different. बहुत से लोगों को B2C का मतलब ही नहीं पता है. D2C भी एक कैटेगरी है. Right. So since you must be knowing, Right. direct to customers, business to business sales and business to customer sales. Right. इसके अलावा भी बहुत सारे many folds हैं basically sales terminologies. Right. Now, the one who is very good at manipulation of words and very good at कस्टमर होता है बीप बनाने वाला चाहिए. That's it, B2C market. Right. Right. तो आई एम सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड्स, आप इसको कट भी कर सकते हो. It's okay. ये मैंने सुना था अपने बहुत ही वेल रिनाउंड मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा सेल्समैन है. वो इतना करोड़ों रुपए बना चुका है अपने सेल्स स्ट्रेटजी से. वो सेम फॉलो करता है. वो वादे नहीं करता, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भेज देता है. ठीक है, वो गंजे को कंघी भेज देगा. ठीक है, तो उसको आता है कि कस्टमर को कैसे मैनिपुलेट करना है. दैट वर्क्स इन B2C. अगर आप बातें मोल्ड करने में बहुत अच्छे हो एंड आपको ऑन स्पॉट क्लोजर करना आता है, आपको इफ यू आर गुड एट स्टोरी बिल्डिंग एंड इफ यू आर वेरी गुड एट अर्जेंसी क्रिएशन, then you should go into B2C. Business to customer. Business to customer means मैंने एक साबुन बनाया और साबुन मुझे घर घर बेचना है. Right. That is business to customer. बट मैंने एक मशीन बनाई है जो साबुन बना सकती है. ठीक है, बट मुझे ऐसे 10 अलग अलग फैक्ट्रीज को बेचनी है. दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. एंड वो फैक्ट्रीज बनाकर जो है वो कस्टमर तक सेल करेंगे अलग अलग ब्रांड. तो बिजनेस टू बिजनेस का कंसेप्ट अलग है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट इज बिजनेस टू कस्टमर. जैसे बायजूस इज अ बिजनेस टू कस्टमर मार्केट, जहाँ पे आपको बिजनेस है, उसका प्रोडक्ट है, आप डायरेक्टली सेल करना है. बट कपड़ा होता है, कपड़े के डिफरेंट होलसेलर्स होते हैं. होलसेलर्स के पीछे जो है फैक्ट्रीज होती हैं. ठीक है, जैसे अरविंद गारमेंट्स है. Right. अरविंद गारमेंट्स कभी कस्टमर के पास नहीं जाएगा कि मेरा कपड़ा ले लो. अरविंद गारमेंट जाएगा फिला के पास, अरविंद गारमेंट जाएगा जैक एंड जोन्स के पास, अरविंद गारमेंट जाएगा ज़ारा के पास, H&M के पास. कि मेरे पास इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट लाइंस हैं, आप मेरे से कपड़ा खरीदो, आप उस पर लेबल चिपकाओ और फिर बिजनेस सेल करो. Just resell it, yeah. दिस इज बिजनेस टू बिजनेस. इफ यू आर गुड एट मार्केट रिसर्च, इफ यू आर गुड एट मार्केट ट्रेंड्स, आप कैसे पढ़ रहे हो, राइट, आप कैसे एक सही CXO, सही CFO, सही CTO को आप खोज सकते हो सेल्स नेविगेटर के थ्रू, व्हिच इज ऑन लिंक्डइन. आप कैसे उनके साथ वो नंबर्स में बात कर सकते हो. इफ यू आर गुड एट एनालिटिक्स, देन यू शुड चूज B2B एज एन ऑप्शन, एज अ करियर ऑप्शन. अगर आपको ये आता है कि आप इन सब लोगों को एक बड़े लेवल पे आप उनको दिखा सको कि आपका ये बिजनेस इम्पैक्ट होगा मेरे इस प्रोडक्ट के थ्रू. अगर आपको बिजनेस इम्पैक्ट दिखाने आता है, अगर आपको नंबर दिखाने आता है कि अगर आप आज 10% या लेट्स से 7% कन्वर्जन कर रहे हो, बट इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस सोल्यूशन के थ्रू, इट विल अपटिक योर सेल्स बाय 4% और 5%. देन अगेन नाउ आपको बहुत एनालिसिस लगेगी, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, उनका रिसर्च करना पड़ेगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं. Right. उस चीज का सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा. आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका प्रोडक्ट सही पिच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हो तो वो आप सही पिच कर सकते हो कि नहीं. अगर वो आपने कर लिया, वो आपको अच्छा लगता है, देन इट्स अ B2B सेल्स फॉर यू. तो 2 पाथ हो गए. एक कि स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छे हो, तो आप B2C चूज कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो कम फॉर D2C ऑल्सो. बट अगर आप एनालिसिस में अच्छे हो, आप फाइनेंस के बंदे हो, अगर आपको चाहिए कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकते हो अच्छे से, तो यू शुड गो इन दैट फील्ड. B2B and B2C are very way different than what
सेल्स प्रोसेस सेम है कि लीड जनरेशन है, लीड एंगेजमेंट है, आइडा मॉडल बेसिकली, बट B2C में कस्टमर को देन एंड देयर क्लोज करना पड़ता है, अर्जेंसी होती है, तो वहाँ पे फॉलोअप रिक्वायर्ड नहीं होता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस में फॉलोअप इज द गेम required, yeah. So this is my take on B2B and B2C. Understood. And that's a fair enough description of the like both the different segments, and बहुत clear answer, and thank you for answering it in such a great way, right? And literally I thank you for guiding me, right, when I was in problems, when I was struggling with the internships and everything, right? Because like next question that I'm about to ask you, actually you solved that problem for me, right? And now like you will also solve the problem for multiple thousands of students who will be watching this podcast, right? So okay, everyone does internships, right? Every student who is actually aware is trying to actually get into internships. Free भी हो सकती है, paid भी हो सकती है, and that scenario is very different, right? Now the thing is that most of the students are not aware that what they need to actually extract out of an internship. Like there are multiple things that students should actually be targeting while they are in an working with some company, right? Now the thing is that companies will be giving you tasks, you'll be doing the task, right? But what is the real gist of that particular internship, right? Any takes on this? Internship is way important than a job, Right. that is for sure. It's your career builder. Right. It gives you confidence, it gives you pre-placement offer, it gives you the initial stage of your networking. एक क्वेश्चन और था when you were explaining me, एक क्वेश्चन और रहता है कि when I should start LinkedIn. बचपन में स्टार्ट कर दो, ठीक है? Why LinkedIn? I'm not promoting LinkedIn. It Yeah. can be any. It can be Instagram, आप सही लोगों से कनेक्ट कर रहे हो. It can be your own product, आप सही जगह पे पिच कर रहे हो. LinkedIn is a place where you will pitch yourself. Right. तो internship is a way where you will pitch yourself. Internship मतलब जैसे होता है ना कि एक खाली प्लेन हो, सीट ना हो, एक जेट है बट उसमें सीट नहीं है, तो आप कस्टमर को लिटा नहीं सकते हो, राइट? आपको सीट पे बिठाना है, तो इट्स अ वैल्यू क्रिएशन, राइट? कंघी है बट उसमें वो कांटे नहीं है, ठीक है? तो देयर इज नो वैल्यू क्रिएशन. बंदा अच्छा है लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो वो एंकर नहीं बन सकता, राइट? इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड उसका बोलना, उसकी जो प्रवक्ता है, मतलब बेसिकली एक ओरेटरशिप स्किल है, दैट इज हिज वैल्यू और हर वैल्यू क्रिएशन. डेफिनेटली. दैट इज सेम विद इंटर्नशिप. Internship is a place, internship is a program where you assess कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए. राइट. With an example, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाता हूँ. मेरा जब टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप चल रहा था, आई वॉज जस्ट रशिंग के मिल जाए मुझे इंटर्नशिप. मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 8 वीक्स की इंटर्नशिप थी. मैं यूनिवर्सिटी में रुका था परमिशन लेके, एंड खाना पीना छोड़कर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ. मैं चिलचिलाती धूप में, मैं बाइक लेके मैं इधर उधर घूम रहा हूँ कि कुछ तो हो जाए, मेरा कहीं सेल हो जाए. एंड इट वाज ऑल B2B, बिजनेस टू बिजनेस. मैं वेबसाइट्स बेच रहा, बिकी नहीं, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, बट मुझे इतना फायदा हुआ उस चीज से. आई कांट टेल यू कि मैं कितना कॉन्फिडेंट था जब मेरा इंटर्नशिप का वाइवा चल रहा था. मेरे क्लास में आई एम नॉट श्योर कि कितने बच्चे थे, 40-50 स्टूडेंट्स रहे होंगे MBA में, और उस टाइम पे एवरीवन वाज हैज अ वेरी फैंसी दिस थिंग कि मैंने होंडा से किया हुआ, मैंने FMCG के जैसे डाबर से किया हुआ है मैंने इंटर्नशिप. भाई डाबर से इंटर्नशिप करके आ रहा है और 2 पेज का इंटर्नशिप लिखा हुआ, और वाइवा में वो कुछ नहीं बता पा रहा है. वाइवा में टीचर बोल रहा है ठीक है, इट्स गुड. आई हैड मल्टीपल थिंग्स टू टेल, राइट? कि कस्टमर क्या होता है, और आप राइट कस्टमर क्या होता है, ठीक है, राइट वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बेचते कैसे हैं. मैंने पूरा मार्केट रिसर्च किया. मैं रात भर बैठ के, मतलब ऐसा नहीं बोला कि मैं एकदम क्रेजी हो गया था उसके लिए, बट मुझे करना था, मुझे सीखना था कि यार होता क्या है, राइट? क्योंकि मेरा ये परसेप्शन था कि मैं जब इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, जब मैं वाइवा में जाऊंगा तो मेरा टीचर मुझसे ये पूछेगा, और मुझे डर लगने लगा था कि जब वो पूछेगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा, ठीक है? उस टाइम के लिए मैंने प्रिपेयर किया. 8 हफ्ते लगे, और दैट हेल्प मी अ लॉट.
मुझे पता चला कि सेल्स फनल क्या होता है, मुझे पता चला कि लोग जब बोलते हैं ना तो कितना बुरा लगता है, जब बोलते हैं कि तू फिर से आ गया तो कितना बुरा लगता है। देन that helped me, and internship is a very premium experience of life. अब मैं आपको ये नेक्स्ट वर्ड में आपके जो क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि हाउ यू शुड डू इट। राइट। अगर आप एचआर में हो तो यू शुड ऑप्ट फॉर एचआर प्रोसेस, बेसिकली सेक्टर कोई भी हो सकता है, बट यू गो फॉर एचआर अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स में है। फाइनेंस वाले फाइनेंस में करो। पहले फाइनेंस में केवल स्टॉक मार्केट आता था, अभी बहुत कुछ आता है और उस सेट की कंपनीज भी हैं। एंड इंस्टीट्यूट्स जो बी स्कूल्स होते हैं वो आपको 6-7 महीने पहले से ही बोल देते हैं कि इंटर्नशिप का फॉर्म भरो, तुम्हें ये इंटर्नशिप पे ये चीजें चाहिए होंगी, वो गाइड करते हैं। राइट। जो कि हमारे कॉलेज की हैकिंग था, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ बट मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। रियलिटी। राइट। हाँ, कि इंटर्नशिप वर्ड ही पता चलता है कि जब हम इंटर्नशिप के 2 दिन पहले फॉर्म भरते हैं कि SIP होता है। राइट। ठीक है, तो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, मुझे फॉर्मूला फुल फॉर्म मुझे SIP के बाद पता चला था कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम तो SIP जब करने से पहले 3-4 महीने पहले ड्राइव चलनी चाहिए कॉलेजेस में, जहाँ पे बताना चाहिए कि आपका क्या है, आपकी कैटेगरीज बननी चाहिए। राइट। मान लीजिए कि मनीष जो है वो फाइनेंस का स्टूडेंट है, उसको फाइनेंस में ही इंटर्नशिप करना है। ठीक है, बट अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो आप चले जाओगे उठ के सेल्स में। राइट। सेल्स में कहीं पे कुछ प्रोडक्ट बेच रहोगे, फिर बोलोगे यार मेरे से नहीं हो रहा, 2 दिन बाद बोलोगे कि यार छोड़ो, इंटर्नशिप का प्रोग्राम का लेटर देगा लिख के कि 8 हफ्ते में सबमिट कर दूंगा, इंटरव्यू हो जाएगा, खत्म हो गया। इट शुड नॉट वर्क लाइक दिस। राइट। अगर फाइनेंस में काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको 2-3 महीने पहले पता चलना चाहिए कि तुम्हें इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप होता क्या है, आपके पास कंपनी के इंटर्नशिप के वो होने चाहिए कि किस किस कंपनी में करना है। फाइनेंस में रेजर पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, दीज आर ऑल फिनटेक्स। अभी जो ट्रेडिंग के भी बहुत हजारों फिनटेक्स आ गए भाई। उनके लिस्ट बनो, उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके करियर्स पे जाओ, HR के नंबर खोजो, HR का लिस्ट बनाओ कि ये रेजर पे का ये चाह रहे, ये चाह रहे, ये चाह रहे। ठीक है, उन पे आप एक बढ़िया सा इंटर्नशिप का वो लिखो कि मैं इंटर्नशिप सीख कर रहा हूँ। एंड कंपनी डू हायर 110% दे हायर इंटर्न्स बिकॉज इट्स कॉस्ट बेनिफिट होता है, ये बहुत कम कॉस्ट में। दूसरा, आप अपने जो ये मोनोटोनस काम है ना वो इंटर्न्स को डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक होता है कि मेरे पास शुभम के पास एक मैसेज आया कि सर आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज, मुझे इंटर्नशिप करना है एंड मुझे XYZ में इंटर्नशिप करना है, मुझे मार्केटिंग इंटर्न में करना है। अब मैं बीइंग एन HR मैनेजर, मैं अपने मार्केटिंग का कोई अगर फील्ड ओपन है तो मैं क्यों नहीं दूंगा भाई उसको। रीजन बीइंग के उसने अपने से चलकर बोला है कि मैं मार्केटिंग में करना चाहता हूँ। राइट। फिर दूसरा सेट होता है, सर इंटर्नशिप करना है, कहाँ करना है पता नहीं है, तो मैं जस्ट टू शो में कि कंपनी के मैं कुछ काम कर रहा हूँ एज HR मैनेजर, मैंने 10 लोग को हायर कर लिया। ठीक है, तो दीज आर 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। इंटर्नशिप से ये हेल्प मिलता है कि जब आप प्री प्लेसमेंट ऑफर में जाओगे, जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आप PPO भी मिल जाते हैं, कंपनी आपका काम देख के आपको प्लेसमेंट देगी। राइट। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, फाइनल राउंड ऑफ फ्रेशर्स, एकदम नए ताजे हो, फ्रेशर हो, जब आप बैठ रहे हो ड्राइव में, आपके पास 10 चीजें अलग होंगी। नाउ द वैल्यू क्रिएशन कम्स कि खाली मतलब जेट था, प्राइवेट जेट था बट सीट नहीं थी। नाउ प्राइवेट जेट है, एक सीट है, एटलीस्ट एक बंदा तो बैठ सकता है, राइट? राइट। नाउ यू क्रिएटेड अ वैल्यू। तो इंटर्नशिप इज अ वैल्यू क्रिएशन फॉर योर फ्यूचर, दैट्स इट। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। पहला लिंक्डइन है फॉर श्योर, इंटर्नशाला, नौकरी पे भी इंटर्नशिप आता है, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स आते हैं। आप 2 इंटर्नशिप कर सकते हो, एक SIP में जैसे मैंने किया था, मैंने BHL में भी किया था, मैंने DLW में भी किया था 2 इंटर्नशिप, मैंने GMAS में भी किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने दूसरे वर्टिकल में भी किया था, 2 इंटर्नशिप किया था। इट क्रिएटेड दैट वैल्यू इन माय रिज्यूमे। राइट। सो दिस इज द and that too amazing takeaways, right? Again, and sir, you have amazing communication skills. You know how to deliver the right thing, and like this thing reflects your experience that you have collected in the past so many years. Thank you so much. Learned over the period of times.
मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. Definitely hustle is required to actually even polishing a raw diamond, then only it brings the shine, right? So True. that's how it happens for everyone, like, right? I am currently a raw diamond, right? I need to be polished. So No, you are already a diamond. array once I reach your age, right, tab I'll be a polished diamond, right? उस point No, पे. see, I don't consider myself as a successful, let's say executive or something. I am still learning. मैं बहुत कुछ सीखना बाकी है. मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे इमेंसली जो है मैं अपना 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगाता हूँ ताकि मैं नई चीजें सीख सकूँ और ग्रो कर सकूँ. Right. तो मैं बोस्ट नहीं कर रहा अपने उसके बारे में, बट दिस इज हाउ यू ग्रो, दैट इज फॉर श्योर. Right. And that's the learning mindset. True. Right. So we already discussed about networking. We already discussed about a lot many topics that are actually the FAQs from the students itself. Right. Now, like, just moving on to the last component of this podcast. Right. And this is, I believe, one of the most crucial topics that we need to actually discuss. Right. To enlighten the students. Now, we already know that, okay, networking is something, right? Networking has a lot of benefits, right? Everyone knows that. But how to actually perform that? What is the right way to network? Because networking ये नहीं है कि आपने किसी को connect कर लिया and now that person is your network, right? नहीं. Networking has a very different definition. Networking has a very different meaning, right? And that too, True. networking differentiates based on the type of goal that you want to achieve, right? उसके basis पे networking is different, right? Now, what is your take on this specifically, and any tips for the students that how should they actually proceed with networking? Yeah, that's absolutely amazing. मेरे पास 50,000 का नेटवर्क हो, but no one knows me. Right. कोई मुझे जानता ही नहीं है, तो वो मतलब ये वेस्ट है. Right. आपका 50 लोगों से दोस्ती हो और 50 लोगों से दोस्ती से नेटवर्क हो, and you share the same mindset. वो that is a real networking. Right. Let's say कि मैं फिनेंस में हूँ और मैं HR वालों से बहुत ज्यादा मेरा नेटवर्किंग है. मैं फिनेंस सेक्टर में ग्रो नहीं कर पाऊंगा. मैं नेटवर्क तो बना लूंगा. मेरे जैसे इंडिया में क्या होता है, मतलब मैं इंडिया को नहीं बोल रहा, पोर्ट्रे कर रहा, बट मैं इन्फ्लुएंसर्स को पोर्ट्रे कर रहा हूँ. 80% ऑफ द फॉलोअर्स आर फेक, फर्जी. 20% ही है जो उनको कन्वर्ट करके देते हैं लाइक्स और व्यूज, राइट? बाकी सब आपका पेड मार्केटिंग में चल रहा है. Right. और मनीष इज अ सोशल मीडिया SMM मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, राइट? तो वो हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को ग्रो करने, बट वो उनका नेटवर्किंग नहीं है. इट क्रिएट्स ब्रांड, राइट? बट जब वो नेटवर्किंग के फील्ड में आते हैं, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल विद बॉलीवुड. There are so many stars, so many there are so many actors, right? But stars are very limited. Yes. There's a reason to it. Networking, right? मतलब पहले पंकज त्रिपाठी सर को बहुत ज्यादा मूवीज नहीं मिलती थी. देन उन्होंने कुछ अच्छी मूवीज की, उन्होंने अपना स्किल शोकेस किया, राइट? फिर उसके बाद उनकी नेटवर्किंग अच्छे लोगों से हुई. फिर वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आए, उसके बाद उनको एक अच्छी मूवी मिली, फिर मिर्जापुर मिली, फिर वो आज वर्सेटाइल एक्टर है, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया. तो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप सेम माइंडसेट कहीं पे रखते हो, एक सेम माइंडसेट के बंदे से बात कर रहे हो, राइट, तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस दिखाओ कि मैंने आज ये सीखा, मैंने आज ये सीखा. नाउ यू विल गेट हाईलाइटेड इन द मार्केट. जैसे मनीष, जब आपने पहली बार बल्क ईमेल सीखा होगा कि कैसे बल्क ईमेल भेजते हैं, भाई आपके लिए वो ऐसा होगा कि यार यूरेका कि मैंने कुछ बहुत बवाल सीख लिया, राइट? उसको आपने लोगों से बोला होगा कि भाई तुझे पता है आज मेलचिम्प पे ना ऐसे भेजते हैं. नाउ दिस इज नेटवर्किंग, राइट? तुम्हारी बात कोई सुनेगा भी नहीं अगर तुम किसी लेट्स से गार्ड को बोलते हो. मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट वो उनका माइंडसेट नहीं है कि उनको बल्क ईमेल भेजना है, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली. तो अगर आप उनको बोलोगे ना तो वो बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है. बट जब आपका नेटवर्क होगा, 10 लोग आपके जानने वाले होंगे कि यार ये ऐसे भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे हैशटैग डालोगे तो इतने फॉलोअर्स आएंगे, दैट इज योर नेटवर्क. एंड योर नेटवर्क विल बिकम अ नेटवर्थ. तो धीरे धीरे लिंक्डइन पे आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को शोकेस करो, आप इंस्टाग्राम पे शोकेस करो. इट विल क्रिएट योर नेटवर्क. आप कॉलेज में हो,
आपने इंटर्नशिप करी, आप डालो कि हैड अ वेरी गुड टाइम विद स्पेंडिंग हियर, आपने 4 मैनेजर्स के नाम लिख दिए, उन मैनेजर को भी अच्छा लगा कि यार किसी कोई मेरा नाम लिख रहा है, रिकॉग्नाइज करा। एंड एग्जैक्टली, एंड वो आपके जो सर्च वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देगा, राइट। आपकी एंगेजमेंट बढ़ा देगा उस मार्केट में, ठीक है। तो पहला स्टेज ये हो गया। दूसरा, आपने कोई स्किल एनहांस किया, तो उस स्किल के बारे में बोस्ट कर दो कि लर्न अ लॉट अबाउट दिस, भले ही 4 लाइन सीखी हो, दिखा दो कि 10 लाइन सीखा है, हाँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, राइट। अब वो लिंक्डइन भी हो सकता है, वो इंस्टा भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, ठीक है। हाइकिंग पे जा रहा हो, हाइकिंग दिखा दो कि मैं इट वाज अ इमेंस प्लेजर टू हाइक हियर। अब आपका उस नीश में आपका नेटवर्क बन गया, तो सेम लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे, धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे, एंड देन यू विल बिकम ऑन अ स्टेज जहां पे पीपल विल रिकॉग्नाइज यू फॉर योर वर्क, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क. So this is how I made it. That's a perfect takeaway as well, right? Now, I believe it is not possible to actually cover everything in a single podcast, right? Because there is a lot to actually discuss about the topics that we are covering, right? Now, based on the experience that you have catered, right, till this point in your life, anything apart from the topics that we have covered, that has a lot of emphasis in a student's life, right? Any topic, any pointers that you would like to mention? Any guidance for the students, specifically? Yeah, for sure. Like there are so many, but I'll tell you the exact, the gist of something which I have learned. Keep your enemies closer. जब आपको लगता है ना कि यार आपके ऊपर हंसा जा रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत हो, आप सोचो कि यार ऐसा क्या मैंने किया था जो हंस रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा ना कि यू विल लर्न अ लॉट कि यार या तो उनका स्किल सेट उतना नहीं था तो हंस रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मेक इट, बट या हो सकता है कि दे आर क्रिटिसाइजिंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, राइट, कि हो सकता है ये कमी रही हो, ठीक है। तो एनिमीज क्लोजर रखो, फ्रेंड्स हमेशा साथ होने चाहिए आपके। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जो आपको ग्रो करते हैं, बट जो आपके जो नॉट एनिमी नहीं बोलूंगा, बट जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, दे विल गिव यू अ चांस टू ग्रो मोर। तो वो एक हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा पार्टिसिपेट करते रहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो आप कोशिश करिए, या सॉरी कॉलेज में है भी, स्कूल में है, आप कोशिश करिए कि आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप अगर MBA में है तो मेक श्योर करिए कि आप अपने एटलीस्ट कोई इवेंट हो रहा है अगर सिटी में, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो पार्टिसिपेट इन दैट, इट विल क्रिएट नेटवर्क। देन आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? तो अब 2 केस हो सकते हैं, आपको कैसे इसका आर्टिकुलेट करना है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो पीपल विल थिंक, द इंटरव्यू विल थिंक कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, दिन भर फोन पे बात करते रहोगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर पीपल विल थिंक कि यार इसको रिलेशनशिप बिल्ड करने नहीं आता। तो आपको बहुत ही मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। अगर यू आर गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रांगली जाओ, चाहे वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। इफ यू आर कमिटेड टू योर मदर, ऑफ कोर्स एवरीवन इज कमिटेड टू मदर फादर, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो जिस भी एक्सटेंट पे जा रहे हो 100% जाओ, राइट, ठीक है। किसी से दुश्मनी करनी है 100% एक्सटेंट पे करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं क्रिटिसिज्म को ऐसा देख रहा था, यार नहीं हो पाएगा। देन धीरे धीरे उसको मैंने ओवरकम करना स्टार्ट किया और अभी भी सीख रहा हूँ। 4 लोग हंसेंगे, बट क्यों हंस रहे हैं उसका रीजन पता चलना चाहिए, राइट, ठीक है। तो दिस इज द टेक बेसिकली। Absolutely amazing. This podcast has honestly been like a gold mine for the students. मतलब मेरे को personally इतना सीखने को मिला ना, मतलब एक तो first of all the examples are just wow, honestly. मतलब ऐसा है कि these things actually make a lot of appeal, है ना। मतलब if you want to actually explain someone in a very simple way तो उसको example दे दो, right? और अगर वो example ऐसे हो जो कि आपने quote करें, then definitely मतलब वो scale up हो जाता है बिल्कुल सारा चीज, right? So मैंने किसी से सुन के बोला है, but still you're delivering something. अब मैंने आपको I'll be quoting it against someone, किसी को मैं बताऊंगा, right? And this is how things actually move further, right? मतलब teachers ने भी कहीं से सीखा है, right?
एग्जैक्टली इट्स मुहावरे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आना चाहिए. Right. And that comes with experience. That comes with the things that you be through, like you go through, right? So this is honestly one of the best podcasts. मैं इतने सारे podcasts कर लिए अभी तक मैंने, and this is like one of the best ones because this is raw definitely, but the thing is कि the delivery is up to the mark, and delivery in such a way that it is actually it has a lot of answers to like many questions. अभी तो मैंने आपसे सिर्फ 9 या 10 क्वेश्चन पूछे हैं in the podcast, but we don't know how many questions we actually solved. मतलब 9-10 तो मेरे लिए है, राइट? वो हजारों 2000 क्वेश्चन होंगे जो कि पता नहीं हमें कहाँ से हिट कर जाए किसी को, राइट? True. Now I am really thankful that you actually invested so much of your time, right, to this podcast specifically. Same here, brother. We were waiting for so long. Right, and today we finally recorded the podcast, and this will be solving n number of problems, students specifically, right? And thank you for delivering such a great podcast. Thank you for being here. Thank Same you here, for bro. investing Thank you so much for inviting me. right. And yeah, that's all from my side, and I'll be sharing his LinkedIn ID, right, in the description as well, right? So do connect to him, talk to him about your problems, right? If just don't bulk message him. That's the only request I नहीं, have. बहुत मैसेज करो, कोई इशू नहीं है. I'll love to answer. तब तो ठीक है, right? Just try to talk to him. जो भी तुम्हें questions है पूछ लो, right? And because he's a very nice person, he has been guiding me since a long time, and definitely मेरे को कोई भी query आता है, just run to him कि भैया बताओ, right? And this is how it is, honestly. So thank you for This is being also here. network. This is You are very smart at networking, so kudos to you. sir. You are very smart at networking. This is I believe relationship building. And that's what I say, right? Networking is Networking का सिर्फ second fold होता है relationship. You network and then you build a relationship. right? And this is a relationship that we have built, right? So Exactly. I believe you all gained a lot of insights from this podcast. I hope कि नोट करा होगा. अगर नोट करा है तो जाके उसको सर्च करके देखो, जो भी लिखा है. चीजें सीख रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना. टाइम वेस्ट मत करो अपना. डोंट लाई टू योरसेल्फ, राइट? Do proper self analysis, and this is the only guidance that I can give you, right? Because अभी मैं इतना credible नहीं हूँ, but whatsoever I have, I'm delivering, right? And people like Shubham Pandey bhaiya, and many more whose podcast will be delivering, right? So like these are all good people who are coming to the platform and delivering the honesty and trust, right? Now that's all from my side. That's all from our side specifically, right? And I believe you all gained a lot of value. Thank you. Just take care of yourself. Signing off. Bye bye.